کراچی کی تاریخی اور ثقافتی شناخت کو محفوظ بنانے کے لیے سندھ حکومت کا بڑا اقدام۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کراچی میوزیم آف ہسٹری کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ شیان علی کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر کی تاریخ تہذیب کو جدید انداز میں محفوظ بنانے کا فیصلہ، ڈیجیٹل سٹی میوزیم کے قیام کا اعلان۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور محکمہ ثقافت کے اشتراک سے بننے والا یہ میوزیم کراچی کی شہری ارتقاء کو نئی نسل تک پہنچائے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ یہ میوزیم جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل آرکائیوز اور اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے کراچی کی صدیوں پرانی تاریخ، ہجرت کے سفر، ادبی و ثقافتی ورثے اور صوفی روایات کو محفوظ کرے گا۔ Going forward, with this history museum, the museum history that we are going to construct along with the KMC and the Citizens Archive Pakistan, this is another public-private partnership, and I'm sure that with this project, which I just asked and I was told that inshallah it will finally be completed in 2 years, but we'll start from next year. میئر کراچی مرسا واف کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کا مقصد ایسا میوزیم بنانا ہے جو شہری کی پہنچ میں ہو۔ ان کے مطابق چند برس قبل شرمین عبید چنائے نے یہ خیال پیش کیا تھا، جسے اب عملی شکل دی جا رہی ہے۔ And once we decided, I remember probably having the briefest meeting with the Chief Minister when Sharmeen walked in, and it took the Chief Minister just 5 minutes to say that yes, that the government of Sindh will go for it. The Culture Department, the KMC, CM was in a kind mood. We were more inclined towards giving the land and having the private sector, raise the funds. CM Saab ended up saying that, we will pitch the entire amount of money. You start working. شرمین عبید چنائے کا کہنا تھا کہ کراچی کی تاریخ کو محفوظ کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ میوزیم پاکستان کی تحریک آزادی اور ان کہانیوں کو محفوظ کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ 11 اگست 47 اسی شہر کراچی میں قائد اعظم نے پاکستان کے لیے اپنا جمہوری تصور دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ جدید ٹیکنالوجی اور تخلیقی اسٹوری ٹیلنگ سے مزین یہ فلیگ شپ منصوبہ کراچی کی اصل شناخت اور ثقافتی روح کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ کیمرمین فراز خان کے ساتھ شایان علی، سٹی 21۔ ناظرین، یونین کمیٹیوں کو بااختیار بنانے کا مشن، شہر کی 246 یوسیز کو 50 LED اسٹریٹ لائٹس فراہم کی جائیں گی۔ سٹی کونسل کے اجلاس میں ضلع جنوبی میں اسکول کی زمین کے حصول کے لیے NOC جاری کرنے، محرم الحرام سے قبل جلوسوں کی گزرگاہوں اور امام بارگاہوں کے اطراف ترقیاتی کام کروانے کی قراردادیں منظور کر لی گئیں۔ مزید تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ یہ عظمیٰ کراچی کی کونسل کے اجلاس میں 12 قراردادیں منظور۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کرم اللہ وقاصی نے شارع بھٹو کی تکمیل پر پیش کی گئی قرارداد پر چیئرمین پیپلز پارٹی کو خراج تحسین پیش کیا۔ بولے، بلاول بھٹو نے اس منصوبے کو مکمل کرنے میں نہایت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ کراچی میں میگا منصوبے پر کام جاری ہے۔ تنقید کرنے والے لاہور کی بارشوں کو رحمت کہتے ہیں، انہیں کراچی کی بارشوں میں صرف ٹوٹی سڑکیں نظر آتی ہیں۔ میں سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس منصوبے میں ہر دم CM سندھ، وزیر بلدیات، میئر کراچی، ہمارے تمام منسٹر، اسٹیک ہولڈر اور کارکنوں کے ساتھ کھڑے رہے، اور انہوں نے کہا نہیں، یہ مکمل ہوگا۔ آج اس کی افادیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا منصوبہ جو اس شہر کی ضرورت تھی۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر بلدیہ عظمیٰ کراچی سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا کہ اس ایوان میں ایسے کئی اعلانات ہوئے جس پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ 3 سال میں کتنے یوسیز چیئرمین ایسے ہیں جن کو بولنے تک کا موقع نہیں ملا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ UC چیئرمین کو عزت دی جائے گی تو شہر کے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن دیکھیں، صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ کئی دفعہ اس ایوان کے اندر بہت سارے ایسے اعلانات ہوئے جس پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہم یہی تو پوچھتے ہیں کہ اس ایوان میں اگر یہ طے ہوا تھا کہ بھائی جو بھی کریکشن پانی کا ہے وہ UC چیئرمین کی پرمیشن سے ملے گا۔ ہم نے گھڑی گھڑی کہا تھا کہ اس پر آپ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ MUCT کے کام جو ہیں تمام UC چیئرمینوں کی وردی سے ہوں گے، ان کو دیے جائیں گے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہی کام آپ کروائیے، تمام UC چیئرمینوں کی وردی شامل کیجیے۔
اجلاس میں ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے مختلف اقدامات پر ہونے والے اخراجات کی منظوری KDA نارتھ نازر آباد فلائی اوور ڈاکٹر پرویز محمود شہید کے نام سے منسوب کرنے اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے زیر انتظام بیچ ویو سائٹ پر 3 ایکڑ اراضی پر کراچی میوزیم کے قیام سے متعلق قراردادیں منظور کر لی گئیں، جس کے بعد اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ کیمرامین عمران AK کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ ناظرین، عید قربان میں دن کم اور مقابلہ سخت، مختلف مویشی منڈیوں میں خریدار جانور کی تلاش میں مصروف۔ ادھر بیوپاری قیمتیں کم کرنے کو تیار نہیں، کہیں سودے بن رہے ہیں تو کہیں مہنگے جانوروں کی شکایات۔ عید سے قبل آخری ویکنڈ پر بڑی خریداری کا امکان۔ تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں دیکھیے۔ عید قربان میں دن کم اور مقابلہ سخت، مختلف مویشی منڈیوں میں خریدار جانوروں کی تلاش میں مصروف، بیوپاری مویشیوں کی قیمتیں کم کرنے سے انکاری، کہیں سودے بن رہے ہیں تو کہیں مہنگے جانوروں کی شکایات۔ عید سے قبل آخری ویکینڈ پر بڑی خریداری کا امکان۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے دن قریب آتے ہی کراچی کے مویشی منڈیوں میں رونقیں بڑھ گئیں، کہیں خریدار پریشان تو کہیں بیوپاری پر اعتماد نظر آنے لگے۔ مویشیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن شہری اب بھی مناسب جانوروں کی تلاش میں سرگردہ۔ لانڈی مویشی منڈی میں بھاری بھرکم بیل توجہ کا مرکز بن گئے، کوئی اپنے جانور کو بادشاہ کہہ رہا ہے تو کوئی سلطان کے نام سے پکار رہا ہے۔ بیوپاریوں کے دعوے بھی دلچسپ ہیں۔ بیل فروخت کرنے والے ننھے بیوپاری کا کہنا تھا کہ 2 سال محنت سے پالا ہے، 7.5 لاکھ روپے سے کم نہیں دوں گا۔ بیل کے 5.5 لاکھ روپے تک بولی لگ چکی ہے۔ میرا نام ہے محمد سفیان، ہم ماشاءاللہ 2 سال سے پالا ہوئے، ہمارے پاس ہر سال مال کھڑا رہتے، اینی ٹائم آپ کو ہمارے پاس مال ملے گا۔ فائنل اس کے 5.5 لگے، ہم نے نہیں دی، ہمارا رینج 6 سے اوپر تک۔ منڈی میں عام خریداروں کی صورتحال کچھ مختلف ہے، کم سے کم جانوروں کی قیمت بھی 2 لاکھ روپے سے شروع ہو رہی ہے، جس پر شہری مہنگائی کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ منڈی اس دفعہ کافی آئی ہے، پچھلے سال کے بنسبت تو بہت آئی ہے۔ جو رینج میں جانور نظر آتے ہیں وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں۔ کم سے کم یہاں پہ جانور آپ کو 2 لاکھ سے کم نیچے ایک جانور نہیں ملے گا، چاہے وہ 2 من کا ہو یا بچا ہو، لیکن 2 لاکھ تک جی۔ بیوپاری کو امید ہے کہ عید سے پہلے آخری ویکنڈ پر خریداری میں مزید تیزی آئے گی، جیسے جیسے وقت کم ہوگا ویسے ویسے دام بھی بڑھنے کے امکانات ہیں۔ قربانی کی سنت ادا کرنے کا جذبہ اپنی جگہ، لیکن مہنگائی کے اس دور میں اچھا اور مناسب جانور خریدنا شہریوں کے لیے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ کیمرامین احمد کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21۔ غزہ امدادی قافلے سمود فلوٹالہ میں شامل سماجی رہنما سعد عیدھی اسرائیلی حراست سے رہائی کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعد عیدھی کا شاندار استقبال کیا گیا، جہاں شہریوں کی بڑی تعداد نے فلسطین کے حق میں نعرے لگائے اور انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاکستان کی فلسطینی بہن بھائیوں سے غیر متزلزل حمایت، سعد عیدھی کی اسرائیل حراست سے باحفاظت رہائی، وطن واپسی پر کراچی ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال۔ سماجی رہنما سعد عیدھی نے غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے سمود فلوٹیلا امدادی مشن میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ اسرائیلی کارروائی کے دوران مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے کئی ارکان کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعد عیدھی کا کہنا تھا کہ تمام افراد کو ایک کنٹینرز میں رکھا گیا، جہاں شدید سردی کے باوجود گرم کپڑے فراہم نہیں کیے گئے۔ ترک حکومت نے رہائی کے بعد 3 خصوصی طیارے بھیجے، جن کے ذریعے انہیں اسرائیل سے ترکی منتقل کیا گیا، جبکہ پاکستانی قونصل خانے نے سفری دستاویزات کی فراہمی میں مدد کی۔ 270 ناٹیکل مائلز کی دوری پر ہمیں گرفتار کیا گیا۔ ہماری دوسری بوٹ تھی جو کہ انٹرسیپٹ ہوئی انٹرنیشنل واٹرز میں، اور 3 دن تک ہمیں پریزنٹ شپ میں رکھا گیا، 2 راتیں پریزنٹ شپ میں گزاری۔ ہماری پریزنٹ شپ میں تقریباً 180 کے قریب لوگ تھے۔ 4 دن تک یہ ہمیں جو ہے کھانے میں ڈبل روٹی دیتے تھے، لیکن بہت سارے لوگ جو تھے وہ بھوک ہڑتال پہ تھے، جس میں بھی شامل تھا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد نے سعد عیدھی کو پاکستانی ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے دادا کا نام روشن کیا۔ سعد ہمارے قومی ہیرو ہیں، انہوں نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کی ہے اور مظلوموں کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ ہم ان کی آمد پر ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور خوش ہیں، لیکن ہمیں حقیقی خوشی اس وقت ہوگی جب 11,000 فلسطینی قیدی
वो इसराइल के कैद से रिहा होंगे। हमें हकीकी खुशी उस वक्त होगी जब हम मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ेंगे। हमें हकीकी खुशी उस वक्त होगी जब फलस्तीन आज़ाद होगा। फैसल ईदी ने मुतालबा किया कि इसराइल फ़लस्तीन में मजालिम कर रहा है, आलमी बिरादरी को इसे रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा। साथ ईदी ने वाज़ेह किया कि वो आइंदा भी गजा के अवाम के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। महंगाई से परेशान आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। ताहम शहरियों ने इस रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। पेट्रोल की कीमत कम लेकिन महंगाई का दबाव कम ना हुआ। आवाम ने रिलीफ को नाकाफी करार दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर कमी कर दी है। नई कीमतों के मुताबिक पेट्रोल 403 रुपये 78 पैसे जबकि डीजल 402 रुपये 78 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा। शहरियों का कहना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी के बावजूद पाकिस्तान में आवाम को मुकम्मल रिलीफ नहीं दिया जा रहा। शहरी के मुताबिक ट्रांसपोर्ट, अशिया खुदनोश और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया अब भी महंगी हैं और सिर्फ 6 या 7 रुपये की कमी से आम आदमी को कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला। 150 200 बढ़ा देते हैं, 5-10 कम होते हैं, उसमें क्या होता है? 200 बढ़ाओ फिर 5 रुपये कम करो, उससे क्या फ़ायदा? हम लोग मजदूर आदमी 1000-1200 कमाने वाले, अगर 400-500 रुपये इनको देंगे तो हम क्या खाएंगे? 5-6 रुपये तो कुछ नहीं है, कम से कम 50 रुपये हो तो तब कुछ फ़र्क पड़ता है, वरना 5 या 10 रुपये जो चल रहा था वो सही था, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया है, जबकि आवाम का कहना है कि हुकूमत को मज़ीद रिलीफ देना चाहिए ताकि महंगाई के बोझ में कुछ कमी आ सके। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। पाकिस्तान में शमसी तवानाई का इनकलाब तेजी से फैल रहा है। अवाम महंगी बिजली, लोड शेडिंग और भारी बिलों से बचने के लिए सोलर सिस्टम्स पर मुंतकिल हो रहे हैं। मुल्क की तकरीबन 25% बिजली शमसी तवानाई से हासिल की जा रही है, मगर पाकिस्तान अब भी कोयले से चलने वाली बिजली घरों पर इन्हिसार कम करने में नाकाम दिखाई देता है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर पॉलिसियों का रुख ना बदला तो मुल्क एक नए महंगे तवानाई बहरान में फंस सकता है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। तो पर लगते सोलर पैनल्स, महंगी बिजली से परेशान आवाम और तवानाई बहरान से निकलने की नई उम्मीद। पाकिस्तान में शमसी तवानाई का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है और आवाम बड़ी तादाद में सोलर सिस्टम अपनाने लगे हैं। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की ताज़ा रिपोर्ट बूम एंड बस्ट 2026 के मुताबिक पाकिस्तान में निचली सतह पर शमसी तवानाई का एक खामोश इनकलाब जारी है, जिसने कौमी बिजली निज़ाम की माली सूरत हाल को भी मुतासर करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 के दौरान ऑफ ग्रिड और गैर मरकज़ी सोलर सिस्टम्स में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि अंदाज़ा है कि मुल्क की मजमूई बिजली खपत का तकरीबन 25% हिस्सा अब शमसी तवानाई से पूरा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक महंगी बिजली, लोड शेडिंग और बढ़ते हुए बिल आवाम को तेज़ी से सोलर तवानाई की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं, जबकि शहरी और देही इलाकों में छतों पर नस्ब सोलर पैनल्स की तादाद में नुमाया इजाफा देखने में आया है। दूसरी जानिब रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान अब भी कोयले से चलने वाली बिजली घरों पर इन्हिसार बरकरार रखे हुए है और किसी भी फाल कोयला पावर प्लांट की बंदिश के लिए ताहाल। आपको बताएं, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी के बायस आलमी मार्केट में बेयकीनी कम और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में हफ्तावार बुनियाद पर 2248 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। मईशत रुख बदलने लगी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जान आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दौरान मुस्बत रुझान रहा। सरमायाकारों के एतमाद में बेहतरी के बाइस 100 इंडेक्स में हफ्तावार बुनियाद पर 1.36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 2248 पॉइंट्स इजाफे से 1,67,844 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, जबकि हफ्ते के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,69,624 और कम तरीन सतह 1,61,613 रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान मार्केट में 130 अरब रुपए मालियत के 2.48 अरब शेयर्स के सौदे हुए, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में 226 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मजमूई मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,616 अरब रुपए तक पहुंच गई। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी ने आलमी मालियाती मंडियों में बेयकीनी कम की, जिसके बायस मकामी सरमायाकारों के एतमाद में भी इजाफा देखा गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए मुस्बत इशारा साबित हुई, जिससे दरामदी बिल में
कमी और महंगाई के दबाव में नरमी की तवक्को पैदा हुई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 6,700 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा कर चुकी है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन हमने कुछ वॉल्टिलिटी देखी, उसकी बड़ी वजह थी मार्जिन भी मार्केट में कुछ बड़ी हुई थी, और फिर इसके साथ साथ लॉन्ग वीकेंड आए तो सरमाएकार कुछ महदूद एक्टिविटीज़ हफ्ते के इख्तिताम भी जारी रखी, लेकिन ओवरऑल ये हफ्ता मार्केट के लिए पॉजिटिव रहा। उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट वीक अगर जंग के हवाले से कुछ मुस्बत इकदाम लिए जाते हैं तो मार्केटें उसको फर्दर वेलकम करेंगी। काफ़ी बेहतर रहा, 5 से 6 हज़ार पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए है। वॉर वाली सिचुएशन भी थी, बट मार्केट इस दफ़ा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हमें ट्रेड होती हुई नज़र आई। इसकी रीज़न ये था कि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है वो इनकॉर्पोरेट हुई मार्केट के साथ, और मार्केट में आपने देखा 4,000 से ज़ायद पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल 2026 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 32 करोड़ 40 लाख डॉलर खसारे में रहा, जबकि मार्च 2026 में ये 1.13 अरब डॉलर सरप्लस था। इसी तरह अप्रैल में खालिज गैर मुल्की सरमायाकारी 5 करोड़ 40 लाख डॉलर रही, जबकि मार्च में ये 16 करोड़ 80 लाख डॉलर थी, जिससे सरमायाकारी में कमी का रुझान सामने आया। इसके अलावा टी बिल नीलामी में मुनाफे की शरह में 9 से 20 पॉइंट्स तक इजाफे के बाद सरमायाकारों की तवज्जो आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी इजलास पर मरकूज हो गई है। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद बढ़ने की तवक्कात में इजाफा हुआ है। अशरफ खान, सिटी 21। तोला एंड तोला एसोसिएट्स ने माली साल 2026-27 के लिए मॉडल बजट पेश कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत इस वक्त मुकामी तरक्याती हिकमत अमली और IMF की सख्त शराइत के दरमियान फंसी हुई है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि IMF की सख्त पॉलिसियाँ तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तफसील ब्यूरो चीफ अशरफ खान की रिपोर्ट में दी। मकामी माशी इस्लाहात ही मईशत को बहरान से निकालने की कुंजी करार। मुल्की मौजूदा माशी सूरत हाल के तनाजुर में तोला एंड तोला एसोसिएट्स ने आइंदा माली साल 2026 और 27 के लिए मॉडल बजट पेश कर दिया, जिसमें टैक्स निज़ाम में बेहतरी, सरमायाकारी के फरोग और मकामी माशी इस्लाहात पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत इस वक्त मकामी तरक्याती हिकमत अमली और IMF की सख्त शराइत के दरमियान घिरी हुई है। तोला एंड तोला एसोसिएट्स के मुताबिक हुकूमत ने IMF को बजट मंजूरी के लिए शराइत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी है। तहम मौसर मकामी माशी इस्लाहात के जरिए मईशत को ज्यादा मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया जा सकता है। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के गैर मुल्की असासे वतन वापस लाने पर टैक्स छूट दी जाए, जिसमें तकरीबन 20 अरब डॉलर तक सरमायाकारी मुतवक्के है। माहिरीन के मुताबिक हुंडी और हवाला के बजाय बैंकिंग चैनल के जरिए तरसीलात ज़र भेजने वालों को 10 रुपए फी डॉलर बोनस देने से कानूनी तरसीलात में नुमाया इजाफा मुमकिन हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि रुपए की कदर मुस्तहकम करके 250 रुपए फी डॉलर तक लाने से महंगाई में तकरीबन 6% कमी लाई जा सकती है, जबकि पॉलिसी रेट में 1% कमी से हुकूमती कर्जों पर 625 अरब रुपए तक की बचत मुमकिन है। माहिरीन ने खबरदार किया कि मौजूदा IMF पॉलिसियों के तहत बजट खसारा GDP 4.4% तक जा सकता है। ताहम मकामी इस्लाहात और टैक्स निज़ाम में बेहतरी के जरिए इसे 2.1% तक महदूद किया जा सकता है। रिपोर्ट में IT सेक्टर को टैक्स छूट देने, ज़राअत को टैक्स नेट में लाने, तवानाई शोबे के नुकसानात कम करने और सरकारी इदारों की निजकारी पर भी जोर दिया गया है, ताकि मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तेहकाम दिया जा सके। इक्तसादी माहिरीन के मुताबिक जामिया मकामी इस्लाहात ही पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाल कर पायदार तरक्की की राह पर गामजन कर सकती हैं। अशरफ खान, सिटी 21। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हेल्थ एंड वेलफेयर सब कमेटी के तहत फ्री मेडिकल कैंप कायम किया गया, जहां शहरियों का मुफ्त मुआयना, टेस्ट और तिबी सहूलियात फराहम की गईं। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। रहनुमाई भी, इलाज भी। KCCI का सेहतमंद इकदाम, शहरियों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप लगा दिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से शहरियों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ शोबों के माहिर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने खिदमत अंजाम दी। कैंप में आँखों, दांतों, ब्लड प्रेशर, शुगर और BMI समेत मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने मुफ्त किए गए, जबकि मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री, अस्पतालों और फलाही इदारों ने भी ताउन फराहम किया। शहरियों को इब्तदाई तिब्बी मशवरे और रहनुमाई भी दी गई। शहरियों का कहना था कि महंगाई के मौजूदा दौर में मुफ्त तिब्बी सहूलतें आवाम के लिए बड़ी सहूलतें हैं और ऐसे कैंप्स का इनेकाद मजीद होना चाहिए। ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, मैंने शुगर कराया, ये वो माशाल्लाह नॉर्मल आ रहा है सब कुछ। अभी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये बहुत अच्छा काम है और यही करना चाहिए इनको माशाल्लाह। और वी आर ग्लैड टू सी देम टू डू दिस
एंड इंशाल्लाह और अच्छा भी होता रहेगा। KCCI हेल्थ एंड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन फरहान अशरफी बोले कि मेडिकल कैंप का मकसद शहरियों में सेहत से मुतालिक आगाही पैदा करना और बुनियादी तिब्बी सहूलतों तक आसान रसाई फराहम करना है। इस कैंप से आपको अवेयरनेस मिलती है। बहुत से लोग सालों अपना शुगर टेस्ट नहीं कराते, BP टेस्ट नहीं कराते, इस तरह के बहुत सारे मामला होते हैं। यहाँ एक तरह से अवेयरनेस दी जाती है कि आप आएँ, अपना टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कराएं। इसके अलावा हमने यहाँ जनरल फिजिशियन कंसल्टेशन के लिए मुख्तलिफ 6-7 इदारों से लोग आए हुए हैं। आँखों का मुआयना फ्री ऑफ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। कैंप में आने वाले शहरियों ने KCCI के इक़दाम को सराहा, जिनका कहना था कि मुफ्त तिब्बी सहूलतें मौजूदा हालात में किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ज़िचकी के दौरान होने वाली पेचीदगी फिस्टोला से बचाव का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तिबी माहिरीन ने कहा कि मुल्क भर में हर साल 3 से 5 हज़ार ख़वातीन ज़िचकी के दौरान फिस्टोला का शिकार हो जाती हैं, जिसके लिए आगाही फराहम करना ज़रूरी है। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। ज़िचकी से होने वाला नासूर फेस्टुला काबिल इलाज बीमारी, हैरान कुन अदाद शुमार। हर साल 3 से 5 हज़ार ख्वातीन फेस्टुला का शिकार। ज़िचकी के दौरान होने वाली पेचीदगियाँ आज भी हजारों ख्वातीन की जिंदगी को मुतासिर कर रही हैं। इन्हीं खतरनाक पेचीदगियों में एक बीमारी फेस्टुला भी शामिल है, जिससे बचाव और इलाज से मुतालिक आगाही के आलमी दिन के मौका पर कराची प्रेस क्लब में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तिबी माहिरीन का कहना था कि अगर ज़िचकी के दौरान एहतियात अपनाने की तरबियत फराहम की जाए तो शरह कम की जा सकती है। ये आलमी दिन पूरी दुनिया में 23 मई को मनाया जाता है। 54 ममालिक हैं दुनिया में बदकिस्मत जहाँ पर फेस्टुला पाया जाता है, हम भी उसमें से एक हैं। पाकिस्तान में हर साल जिस तरह पहले हमने बताया कि 4 से 5 हज़ार फेस्टुला बनते हैं, लेकिन हमारी तमाम कोशिश के बाद हम 1200-1100 से ज़्यादा फेस्टुला सालाना ठीक नहीं कर सकते। बेसिक हेल्थ यूनिट पे, रूरल हेल्थ सेंटर पे यह सहूलत फराहम करनी पड़ेगी। दूसरी ये कि जो 18 साल से कम उम्र की जो शादियां हैं उनको रोकना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये 2-4 चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट की विल होनी चाहिए। जब तक विल नहीं होगी तब ये सारी चीज़ें हमारी जो ना फजूल होती रहेंगी और अवेयरनेस को कोई इतना खास असर नहीं पड़ेगा लोगों पर। फेस्टुला के मुफ्त इलाज से वाबस्ता कोही गोट अस्पताल की डॉक्टर और समाजी कारकुन शीमा करमानी ने कहा कि फेस्टुला एक काबिल इलाज बीमारी है। औरतों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में बात करना लोग उसको बुरा समझते हैं, हालांकि ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कुदरती तौर पे हर औरत के जिस्म में मौजूद है और उस पे उसके मसले होते हैं और उस पे बात करना ज़रूरी है। जब हम प्रिवेंट करते हैं फिस्टुला को, इसकी रोकथाम के लिए और ट्रीट करते हैं, तो हम सिर्फ उस एक औरत की ज़िंदगी को ही नहीं डिग्निटी फराहम करते, बल्कि हम ख़ानदानों को रिस्टोर करते हैं, फैमिलीज़ को। और रिपेयर्ड वुमेन जो है वो अपनी कम्युनिटी में जाती है, कम्युनिटी में जाके वो वर्क फोर्स में एंटर करती है। जब वर्क फोर्स में एंटर करती है तो वो कंट्रीब्यूट करती है सोसाइटी में। और इस दौर में मर्द और औरत या तमाम जेंडर्स का वर्क फोर्स में कंट्रीब्यूट करना उतना ही ज़रूरी है जिस तरह आपका और हमारा सांस लेना। कोही गोट अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता 21 वर्षों के दौरान 12,700 से ज्यादा ख्वातीन का मुफ्त इलाज किया जा चुका है, जबकि मुल्क भर में फेस्टुला के इलाज के लिए सर्जन्स की तरबियत का सिलसिला भी जारी है ताकि ज्यादा से ज्यादा ख्वातीन को सहूलत फराहम की जा सके। कैमरामैन काशिफ के हमरा इब्राहिम रिंद, सिटी 21।